in this session. This is a session of maths right now. In this 1 hour session, we are going to deal with many important things. And one thing I will make you ensure that due to some technical reason, today was chemistry class, but it will now take place on Monday. तो आज की क्लास मैथ्स की होगी. सो आज की क्लास हमारी मैथ्स की होने वाली है. तो इसमें हम लोग लेट अस सी क्या करेंगे. तो केमिस्ट्री की क्लास मंडे को होगी. तो लेट अस सी हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं आज. हम्म सो as you can see here, so we have the chapter relations and functions. In the last session we studied about sets. Sets is being followed by relations and functions. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और ये बड़ा टॉपिक है. मतलब रिलेशन तो फिर भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फंक्शन एक बड़ा टॉपिक है. और ये क्लास 11th में भी होता है, क्लास 12th में भी होता है. तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड again, if you want to see schedule of classes, then you can go to this link which is in the description, and you can see the schedule of classes. If there would be any change also, you will get to know here. And then we have ebooks like these, which you can get from this click. This is in the description. This is JEE Main 2025 chapter wise weightage, JEE Main exams high scoring chapters and topics. Just study 40% syllabus and score. So these books are very helpful for students over the years, and they have given the proven result. तो इसके बारे में और थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे. अब आज के चैप्टर के लिए हम लोग शुरू कर देते हैं. पहले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है रिलेशन का. तो रिलेशन में मेनली हमें जो डील करना पड़ता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीन चीज पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं रिलेशन में. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस. तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, which of the following is not correct for relation R on the set of real numbers. So A में कह रहा है कि xy belong to the relation R implies that mod x minus mod y is between 0 and less than equal to 1, is neither transitive nor symmetric. So if we talk about A option, mod x minus mod y is less than equal to 1 and greater than 0. Okay. So basically, if we see that mod x minus mod y is between 0 and 1, so what about its symmetricity and transitivity? Is it symmetric or not? So if we take, suppose, x as 1.5 and y as 1, okay, these two real numbers we are taking. So mod x minus mod y will be equal to 1.5 minus 1, that will be 0.5, and mod y minus mod x
is equal to 1 minus 1.5, which is minus 0.5. So we can say that mod x minus mod y is less than equal to 1, greater than 0. It is true. But mod y minus mod x is less than equal to 1, greater than 0 is not true, because it is minus 0.5. So it is negative number. So we can say that xy belongs to the relation R, but yx is not belonging to the relation R here, which means it is not symmetric. This relation is not a symmetric relation. Next thing they are saying about transitivity. So mod x minus mod y, again we talk about transitivity. So what we come to, let us take x as suppose 3.5, y as 2.75, and z as 2. Let us take like this. Now mod x minus mod y, if we will do mod x minus mod y, we'll get 3.5 minus 2.75, which is 0.75. This belongs to the relation. This is actually between 0 and 1. So this 0.75 is between 1 and 0. So it 3.5 and 2.75 belong to the relation R. Mod y minus mod z, if we will do, we'll come to 2.75 minus 2, which is 0.75. Again, 0.75 lies between 1 and 0. So y comma z also belongs to the relation R. Now, if we talk about mod x minus mod z, so what will happen? Mod x is 3.5, mod z is 2, which will be 1.5. And this 1.5 does not belong to the interval 0 to 1. So what we see that 3.5 comma 2.75 belongs to the relation R. 2.752 belongs to the relation R, but 3.5 comma 2 does not belong to the relation R. So what it simply means that it is not transitive. Because for transitivity, what we check, xy belong to R, yz belong to R, means xz also belong to R. So this relation is neither symmetric nor transitive. What they are saying in this option, that this relation is neither symmetric nor transitive. So this is a true statement. This is statement over here is a true statement. So this is not our answer, because we have to see not correct. So we will come to B option. Now what is there in B option? Let us see. Mod of x minus y is less than equal to 1 is symmetric and transitive. Mod of x minus y is between 0 and 1 is symmetric and transitive. So let us check for symmetric. So if we take 1.5, or we just take x comma y. So if x minus y mod is between 1 and 0, then what can we say about mod of y minus x? So mod of y minus x will also be between 1 and 0. Suppose we are getting minus 7.5, 0.75, which is between 1 and 0. Then mod of minus 0.75 is also 0.75.
which belongs to 1 and 0. So this is symmetry. If xy belongs to the relation R, then yx also belongs to the relation R. Let us check for transitivity. So for that, let us take an example. X minus y is between 1 and 0. So let us take x as 1.75 and y as 1 and z as 0.25. So mod of x minus y will be here 0.75, which actually lies between 1 and 0. And if we talk about y minus z, that is also 0.75. Difference of 1 and 0.25 is 0.75. So 0.75 also lies between 0 and 1. And if we talk about x minus z, so what will happen? X is 1.75, z is 0.25. So it will become 1.5 mod, which is 1.5. So 1.5 does not belong to 0, 1. So x comma y belongs to the relation R and y comma z belongs to the relation R, but x comma z does not belong to the relation R. So it is not transitive. It is symmetric but not transitive. So if we talk about the option B, that mod of x minus y is less than equal to 1 is symmetric and transitive, it is a false statement. What is this? This is a false statement because yes, it is symmetric but not transitive. But not transitive. So we can say that option B is an incorrect result. So B is our answer. That is, we have to select not correct. So not correct is B. Similarly, we can proceed for C and D also, but since we have got an answer, so no point in proceeding for C and D. But for practice purpose, if you try, you can check C, it will come out to be correct, and check D, it will also come out to be correct. And that means that B is the incorrect statement. Now let us come to the next question. Let me enlarge this image. So here it is a question of function. It says that fx is equal to log 3 plus cos pi by 3 pi by 4 plus x plus cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x minus cos 3 pi by 4 minus x is. So we have to find the range of this function. That is, what will be the output for x belonging to real number, because you can take x belonging to real number as the domain, as this function is defined for all x belonging to real number, or maybe not. If it is inside log, maybe not, we have to check. So first let us simplify this. So what we will do, we will take fx is equal to log to the base root 5 3 plus cos 3 pi by 4 plus x plus
cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x minus cos 3 pi by 4 minus x. So if we apply the formula of trigonometry, so cos c plus cos d, we know what is cos c plus cos d. It is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. And what is cos c minus cos d? It is minus 2 sine c plus d by 2 into sine c minus d by 2. So here this plus this is cos c plus cos d. So we write it. This is equal to 3 plus, and there is log to the base root 5 also. So 3 plus cos c plus cos d is going to be 2 cos c plus d by 2. So you can see 3 pi by 4 plus pi by 4 will become pi, and x plus x will become 2x. So pi plus 2x by 2 into cos c minus d by 2. So x will get cancelled. 3 pi by 4 minus pi by 4 is pi by 2. So it is pi by 2 by 2. Next, what we take? Next, we take this one and apply cos c minus cos d. So when we apply this, what we get? Minus 2 sine c plus d by 2. So pi by 4 and 3 pi by 4 will become pi minus 2x by 2. This will become pi minus 2x by 2 into sine c minus d by 2. So x will get cancelled. Pi by 4 minus 3 pi by 4 will be minus 2 pi by 4, that is minus pi by 2 upon 2. So this is minus pi by 2 upon 2. This is equal to log to the base root 5, 3 plus 2 cos, this is pi by 2 plus x into cos pi by 4 minus 2 sine pi by 2 minus x into sine minus pi by 4. So this is what we are getting. Now let us simplify this. Cos pi by 4 is 1 by root 2 and sine minus pi by 4 is minus 1 by root 2. So it will become log to the base root 5, 3 plus 2 cos 90 degree plus theta is minus cos theta. So that is why we will write here as minus cos x. Cos pi by 2 plus theta will be minus sine theta. So we'll write it as minus sine. This is sine cos 90 degree plus theta is minus sine theta. So minus sine x. And cos pi by 4 is 1 by root 2. So this will become 2 by root 2, which is root 2. This will become plus, and 2 by root 2 again is root 2. And sine pi by 2 minus x is cos x. So we write it like this. So it becomes log to the base root 5 and what else we are getting? 3 minus root 2 sine x plus root 2 cos x. Now this will be log to the base root 5, 3 plus root 2 cos x minus root 2 sine x. Let us write it like this. We know that a cos x plus b sine x lies between root over a square plus b square and minus root over a square plus b square.
So we can say that this is actually fx, right? This is fx. So this fx. So first let us talk about root 2 cos x minus root 2 sin x. So it will lie between root over 2 plus 2, that is 2 and minus 2. Root 2 square is 2, root 2 square is 2, it will become 4, root over 4 is 2. So it will become log to the base root 5, 3 plus 2, and another one will be log to the base root 5, 3 minus root 2. So this is log 1 to the base root 5 fx is log 5 to the base root 5. Now log 1 is 0, so this will be 0. And log 5 to the base root 5, this will become 2 log root 5 to the base root 5, because 5 is root 5 square and root 5 to the base root 5 is 1. So fx belongs to 0, 2. So the range is 0, 2. So which option is correct? Option D is correct, right? Okay. Now let us come to the next question. Before coming to the next question, let us little bit talk about what is there in store for you for preparation purpose. So then we'll come to the next question. Okay, so we were talking about e-books listing. मैंने ये बताया था कि ई बुक्स जो है इस तरह के अवेलेबल है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन विजिट दैट। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है कि हमारे पास और कौन कौन सी ई बुक्स हैं। जेईई मेन 2025 चैप्टर वाइज वेटेज, उसके रिलेटेड हमारे पास मटेरियल है जो कि इस लिंक से मिल जाएगा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन जेईई मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, जो ज्यादा स्कोर करने वाले टॉपिक्स होते हैं, जो थोड़ा आसान भी होते हैं और उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, उनके बारे में इस लिंक में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके बाद जेईई मेन प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ये इस लिंक में मिल जाएगा। देन जेईई मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो ऑल द फॉर्मूला एट वन प्लेस यू विल गेट, तो ये इस लिंक से मिल जाएगा। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फंक्शंस का ही एक क्वेश्चन है। तो एक तो रेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे यहाँ पे हमने रेंज के बारे में जाना कि एफएक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डोमेन। तो डोमेन पे भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। So the domain of the function fx is equal to sine inverse 3x square plus x minus 1 by x minus 1 whole square plus cos inverse x minus 1 by x plus 1 is. So sine inverse t, if it is like this, then what is the condition on t? T should be between 1 and minus 1, because sine gives you the output 1 and minus 1. So sine inverse can take input as minus 1 to 1. Similarly, if there is cos inverse t, then t will also be here between 1 and minus 1. So both the
terms here, sine inverse term, that is 3x square plus x minus 1 by x minus 1 whole square. This is between 1 and minus 1. And another term is x minus 1 by x plus 1. This term will be between minus 1 and 1. So if we talk about the first condition, this one, let us solve the first condition. Then we'll come to the next condition. 3x square plus x minus 1 by x minus 1 whole square. It is between 1 and minus 1. So one thing is clear, that x is not equal to 1, because that will make this denominator 0 and this term will become undefined. And otherwise, x minus 1 whole square is greater than 0. For x not equal to 1, it is greater than 0 because it is a square term. Now, if we have a square term, then we can simply multiply this to the inequality in each term. तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां पर तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंस ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इनइक्वालिटी वैसे ही की वैसे ही रहेगी. So this becomes minus x square minus 1 plus 2x, which is less than equal to 3x square plus x minus 1. It is less than equal to x square plus 1 minus 2x. Now, if we see the conditions, this condition. So from here we get 3x square plus x square as 4x square. X minus 2x is minus x. Minus 1 and minus 1 will get cancelled. This is greater than equal to 0. And if we talk about another condition, this is less than equal to this. What we will get? 3x square minus x square is 2x square. Plus x plus 2x is plus 3x. Minus 1 is minus 2 is less than equal to 0. So 4x square minus x greater than equal to 0. This is one condition. 4x square minus x greater than equal to 0, which means x into 4x minus 1 is greater than equal to 0. So what are the zeros? 1 by 4 and 0. Positive, negative, positive. We need greater than equal to 0. So we can take x less than equal to 0 or x greater than equal to 1 by 4. So this is the first interval which we are getting. Another interval is 2x square plus 3x minus 2 is less than equal to 0. 2x square plus 3x minus 2 is less than equal to 0. So here we write it as 2x square plus 4x minus x minus 2 as less than equal to 0. So it will be 2x into x plus 2. And this will be 2x minus 1. So middle term is splitting. करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 2x into x plus 2 minus 1 into x plus 2. ये less than equal to 0 है. इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो एक है हाफ और एक है -2. ये दो जीरोस हैं. प्लस माइनस प्लस. हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0. तो लेस देन इक्वल टू 0 अगर चाहिए तो हम कौन सा लेंगे, -2 से लेके हाफ के बीच में. x बिलोंगिंग टू -2 टू हाफ. तो ये हो गया दूसरा कंडीशन. पहला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए. अब आ जाते हैं यहां पे एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी हमें कि x जो हमने लिया था ना वो 1 के बराबर नहीं है. तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 में 1 भी आता है. तो ऐसा ना हो कि गलती से हम 1 ले लें, तो 1 नहीं लेंगे हम लोग. इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है ये है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये वाली कंडीशन.
ये 1 और -1 के बीच में है। तो इससे दो अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। एक -1 लेस देन इक्वल टू x-1/x+1 होगी, और एक x-1/x+1 लेस देन इक्वल टू 1 होगी। पहले लेफ्ट वाली देख लेते हैं। तो x-1/x+1, और 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x+1/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x/x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक x 0 आएगा और एक -1 आएगा। -1 इज अ पोल, -1 के बराबर हो नहीं सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर विल बिकम 0, देन होल टर्म विल बी अनडिफाइंड। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन मिल रही है। और x नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन हमारे साथ रहेगी। तो ये आ गया। इसके बाद एक और कंडीशन है, वो है ये वाली, x-1/x+1 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो x-1/x+1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, x-1/x+1 लेस देन -1 लेस देन इक्वल टू 0। सो x-1 माइनस x-1/x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, -2/x+1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो 2/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि x+1 एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, इक्वल टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि उस केस में फिर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x+1 एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन आ गई। अब ये चारों कंडीशंस को हमें ओवरलैप कराना है और देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी कंडीशंस लिखना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ये पहली कंडीशन है, x 0 से छोटा बराबर और 1/4 से बड़ा या बराबर। तो ये जो आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये जो आएगा बीच में 1 पे इंक्लूडेड नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 1। ये पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में। दिस इज द सेकेंड कंडीशन, x बिटवीन -2 एंड हाफ, -2 और हाफ दोनों इंक्लूडेड है। तो -2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, हाफ ले लेते हैं यहाँ पे। तो -2 से लेके हाफ, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो -1 यहां ले लेते हैं, x लेस देन -1 हो गया एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर भी जब 1 आएगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये ऐसा हो गया, दिस इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो सिंपली ये आ रही है कि x इज ग्रेटर देन -1। तो फोर्थ कंडीशन अगर हम प्लॉट करते हैं तो -1 यहां पर है एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा रीजन है जिसमें चारों ओवरलैप कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम लेफ्ट से बढ़ते जाते हैं तो
रेड वाला -2 तक ओवरलैप नहीं कर रहा है, ग्रीन वाला भी नहीं कर रहा है। -1 तक जाते हैं तो रेड वाला ओवरलैप नहीं कर रहा है। -1 से 0 तक जाते हैं अगर, तो व्हाइट वाला ओवरलैप नहीं कर रहा है, व्हाइट का रीजन नहीं है। 0 से 1/4 जाते हैं तो ब्लू वाला वहां पे डिफाइन नहीं है। 1/4 से अगर 1/2 जाते हैं तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग इंटरवल। 1/4 से लेके 1/2, इस इंटरवल पे ये चारों हैं, चारों लाइंस प्रेजेंट हैं। उसके बाद 1/2 के आगे ग्रीन लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे इसका? x बिलोंगिंग टू 1/4 कॉमा 1/2। तो सारी कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है और फिर हम सही ऑप्शन लिख सकते हैं। तो 1/4 कॉमा 1/2 यूनियन 0 भी है। देख लेते हैं, हमने जीरो जीरो मिस तो नहीं कर दिया क्योंकि वो आइसोलेटेड पॉइंट था। 0, हाँ, 0 पे ब्लू भी है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है और रेड भी है। तो ये जो 0 है ये अकेला एक पॉइंट है, सिंगलटन सेट है, वो भी इस इंटरवल पे है। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। तो हमने रेंज पे भी एक क्वेश्चन अभी देखा, उसके बाद एक डोमेन पे क्वेश्चन देखा है। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट अवर रिसोर्सेज। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी लिंक्स के थ्रू आपको ये सारी ई बुक्स मिल सकती हैं। उसके बाद देर इज अ फीडबैक फॉर्म, जहां पे आप करियर 360 के कोई भी वीडियोस का कंटेंट के बारे में फीडबैक देना चाहते हो, पॉजिटिव निगेटिव एनी टाइप ऑफ फीडबैक, तो आप इस फॉर्म को फिल करके दे सकते हो। ये भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो दिस इज अ फीडबैक फॉर्म। और अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं इसे, सो दैट कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बॉक्स एक्स है, जिसके बारे में दिया हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ये तो हमें पता है, ये दिया हुआ है। और सिग्मा दिया हुआ है n इज इक्वल टू 8 to 100 -1 to the power n इंटू n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका सम हमें निकालना है, तो इसका एक पैटर्न बन रहा होगा, हम पहले वो पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले n को 8 पुट करेंगे तो -1 की पावर 8 हो जाएगा +1, और n हो जाएगा 8, 8/2 4 हो जाएगा, और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। तो ये 4 का बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे। 9 अगर लेंगे तो -1 to the power 9 माइनस होगा, और n 9 होगा तो -9/2 इज -4.5। देन 10 अगर लेते हैं तो ये 5 आएगा। अगर 11 लेते हैं तो -11/2 दैट इज -5.5 आएगा। दो टर्म्स और देख लेते हैं। 12 अगर लेते हैं तो 6 आएगा, और अगर 13 लेते हैं तो -6.5 आएगा। और इसी तरीके से हमारा सीरीज जा रहा है। जो एंड होगा 100 पे, तो वहां पे
50 होगा, और उससे पहले वाला 99 पे -99/2 इज 49.5, -49.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर देते हैं। तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, देन -4.5 का -5 हो जाएगा, +5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही रहेगा, -5.5 का -6 हो जाएगा, देन +6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही रहेगा, देन -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 हो जाएगा, और ये इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। -49.5 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो -50 हो जाएगा, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी 50 होगा। टोटल कितने टर्म्स है? n = 8 से लेके 100 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 93। ठीक है, 8 को इंक्लूड करके अगर हम ले रहे हैं तो 8 से लेके 100 तक कितने टर्म्स हो गए? 100 - 8 इज 92, 92 + 1 इज 93। तो ये जो टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं टोटल 93 टर्म्स आ रहे हैं। इसमें अगर हम कैंसिल करें तो हम देख सकते हैं आसानी से कि -5 + 5 कैंसिल होगा, -6 + 6, -7 + 7, इस तरीके से पेयरिंग करके -50 + 50 कैंसिल होगा। लास्ट में जो टर्म बचेगा वो ओनली 4 बचेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, विच इज ऑप्शन बी। ओके, now let us come to the next question. So here it is given that a plus alpha is equal to 1, b plus beta is equal to 2, and a times fx plus alpha times f of 1 by x is equal to bx plus beta by x, where x is not equal to 0. Then value of the expression fx plus f of 1 by x plus 1 by x is। ठीक है, तो हमें इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है, ए एफ एक्स प्लस अल्फा f1/x इज इक्वल टू bx प्लस बीटा बाई एक्स। इसमें हम एक काम ये कर देते हैं कि सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल x, तो अगर हम x को 1/x से भी रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए भी ट्रू होगा। तो ए एफ ऑफ 1/x प्लस अल्फा ये हो जाएगा fx। So what we are doing, replacing x by 1/x, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू b/x प्लस बीटा एक्स। अब ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 1 + 2। तो हमें मिलेगा a इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस बीटा इंटू 1/x प्लस x। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और जो यहां पर इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको
अगर हम एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स को कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस अल्फा। और इधर अगर हम एक्स प्लस वन बाई एक्स को कॉमन ले लें तो इधर लिख सकते हैं बी प्लस बीटा। और हमें और क्या दिया हुआ था ये भी देख लेते हैं। ए प्लस अल्फा वन दिया हुआ था, बी प्लस बीटा टू दिया हुआ था। तो ए प्लस अल्फा इज गिवन एज वन, into fx plus f of 1 by x. B plus beta is 2, which is x plus 1 by x. So this implies that fx plus f of 1 by x by x plus 1 by x is equal to 2. तो अगर हम देखें तो यही हमें निकालना था, fx plus f of 1 by x by x plus 1 by x. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग जो रिसोर्सेज के ऊपर कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि फीडबैक फॉर्म है जिसको भरा जा सकता है। उसके बाद एक लास्ट चीज जो हम करियर्स 360 के साइट से आपको एक रिक्वेस्ट है और कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर है, वो ये है कि अगर कोई भी क्वेरी आपके पास है तो उसके लिए आप इस मेल आईडी पे क्वेरी को भेज सकते हो, तो योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व मोस्ट प्रॉब्ली। तो live classes at entrance360.com is the mail ID where you can send your queries. तो जो डिस्कशन था रिसोर्सेज को लेके वो यही था आज के क्लास में। बाकी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेंज पे है अगेन। सो लेट एफ आर टू आर। तो एफ इसका, आर जो इसका रियल नंबर जो है डोमेन है और आर रियल नंबर को डोमेन है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज। ठीक है, तो इसको अप्रोच करने के कई सारे तरीके हैं। तो पहले मैं मेथड वन बता देता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट एफ एक्स को हम वाई ले लेंगे। सो वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। So you get y x square plus y is equal to x. So you get y x square minus x plus y is equal to 0. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब अगर हमें x की रियल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि डोमेन में x की रियल वैल्यूज लिया जा रहा है, तो या इसका मतलब है कि इससे हमें रियल वैल्यूज मिल रही हैं। तो अगर रियल वैल्यूज मिल रही हैं तो y पे क्या कंडीशन होगी? तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तभी हमें पॉजिटिव रियल वैल्यू मिलेगी।
तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको अगर हम 2y माइनस 1 बना दें और ये 2y प्लस 1, तो निगेटिव कॉमन लेके आरएचएस में ले गए हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो गया। अब यहां से हमें दो जीरोस मिल रहे हैं, एक है -1/2 और एक है 1/2, प्लस माइनस प्लस। तो अगर हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो हम क्या लेंगे, y बिलोंगिंग टू -1/2 से लेके 1/2। तो y का ये इंटरवल आ रहा है हमारे पास। एंड जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वो है ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। So the correct option which we have, let us see, it is one, I think. Yeah, correct option is A. Correct answer is option A. लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको करने का दो मेथड हो सकता है। एक तो मेथड वन है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स को वाई ले ले रहे हैं और इसको जो है क्वाड्रेटिक में चेंज करके फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, क्योंकि एक्स रियल है। अगर हम दूसरा मेथड करते हैं, मेथड टू, तो मेथड टू में हम एएमजीएम का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एएमजीएम? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर एक्स, फॉर पॉजिटिव, फॉर ए बी पॉजिटिव, दैट इज a plus b/2 is greater than equal to root over ab for ab पॉजिटिव। तो यहां पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x/1 + x²। तो उस केस में अगर हम यहां पर x/1 + x² को लिख सकते हैं 1/1 + x² x, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मिलेगा और फाइनली इसको ऐसा लिख दिया 1/1/x + तो यहां से 1/x + x जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो केस वन ले लेते हैं कि इफ x इज पॉजिटिव, तो x अगर पॉजिटिव होगा तो 1/x + x जो होगा वो /2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर x इंटू 1/x हो जाएगा। am is greater than equal to gm. So this is 1/x + x is greater than equal to 2 हो जाएगा, क्योंकि ये x कैंसिल होके 1 का √1 होता है। तो 1/x + x is greater than equal to 2 for x greater than 0। तो x जब 0 से बड़ा है तो उस केस में ये कंडीशन आएगी। दूसरा केस ले लेते हैं, x जब 0 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इसको देखें फंक्शन को एफ एक्स को, तो ये फंक्शन अगर x को हम निगेटिव ले रहे हैं तो इसमें एमजीएम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एमजीएम के लिए तो ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इफ x इज निगेटिव माइनस एक्स इज पॉजिटिव। जैसे x अगर -5 है तो -(-5) विच विल बी +5 वो पॉजिटिव होगा। तो हम यहां पे लगा सकते हैं -x + -1/x/2, इसका जो अरिथमेटिक मीन है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका होगा। तो ये हो गया -x - 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 आ गया। -x - 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सो x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये कंडीशन कब आ रही है, फॉर x लेस देन 0।
ठीक है। अब उसके बाद अगर हम एफ एक्स को देखें तो एफ एक्स है क्या? एफ एक्स है एक 1/x+1/x। तो उस सिचुएशन में अगर हम पहली वाली कंडीशन लेते हैं, ये वाली, तो पॉजिटिव एक्स के लिए 1/x+x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा फॉर एक्स टू बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर x+1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले कंडीशन से, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/2 से छोटा होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ा होगा। 0 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, तो 0 और ½ के बीच में होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर हम दूसरे वाले पे देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1/x, जबकि x निगेटिव है, तो उस केस में x+1/x जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू -2 है फॉर x निगेटिव। तो x+1/x अगर लेस देन इक्वल टू -2 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0 फॉर एक्स लेस देन 0, क्योंकि x+1/x का जो रेसिप्रोकल है वो निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि x+1/x निगेटिव क्वांटिटी है। ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब x इक्वल टू 0 हमने दोनों में से किसी केस में नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमने फंक्शन को कैसे चेंज कर दिया था? फंक्शन था तो ये, हमने उसको ऐसे चेंज कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि x इक्वल टू 0 के लिए ये अनडिफाइंड हो रहा था, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन तो ये है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं और उसको एफ एक्स में, मतलब x/1 + x² पे पुट करते हैं, तो ये क्या होगा? 0/1 + 0 विल बी 0। तो एफ एक्स 0 भी मिलेगा फॉर x इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम तीनों कंडीशंस को लिखते हैं, पहली कंडीशन क्या थी? एफ एक्स बिटवीन 0 and ½ फॉर x greater than 0, then fx between -½ and 0 for x less than 0, and here fx is equal to 0 for x equal to 0। अब इसको कंबाइन करेंगे, इसका यूनियन लेंगे, तो fx will be less than equal to 1/2 to -1/2 for x belonging to real number। तो जो हमारा रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? -½ से लेके +½ यही आंसर हमारा फर्स्ट मेथड से भी था। तो फर्स्ट मेथड शॉर्टर मेथड था, और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जा रहा है एएमजीएम की इनइक्वालिटी का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम सीक्वेंस इन सीरीज में भी कई बार देखते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड टुडेज सेशन नाउ, एज we have completed the time period of the session also and did very marvelous questions also, which will help us in our JEE Mains preparation. So finally, thank you. For any queries, please reach out to live classes at entrance360.com.